Assalamu alaikum and welcome to our fourth session on computer science. In today's session, we are going to discuss information systems, that is a sub-branch of computer science in detail. And for that, again, we are joined by Asma. Assalamu alaikum, Asma. Wa alaikum assalam, Maham. How are you? Alhamdulillah, Asma. So today we are going to discuss information systems. So please start. Okay, so dear audience, in the last three sessions, we discussed computer science foundations and principles, computer science as a field, and in the third session, we discussed artificial intelligence. So today we will continue with a BS in information systems and what is the scope in it, what are the courses that are being taught in BS information systems, and what is the job market of BS information systems. So basically, if I want to pursue a degree in information systems, what it requires designing information systems and services. So in today's tech-centered job market, there's a high demand for those professionals that take information systems as a degree. They choose it as a degree. So what you are required to do in information systems is you are required to design it. You are required to manage it for a diversity of users. You are required to interpret the data that is there, and you have to analyze it for real world application. यानी हम कह सकते हैं कि इसमें हमारे पास जो एस्पेक्ट है वो ह्यूमन एस्पेक्ट भी है जिसे हमें कवर करना है. यानी आप इसको सोशल कॉन्टेक्स्ट में इंफॉर्मेशन एज अ सोसाइटी पर वो क्या इम्पैक्ट कर रहा है, यानी सोशली एंड एथिकल मॉरल, इसमें हम इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को देखते हैं. फॉर एग्जांपल कि अगर हम लेट्स से एक एप्लीकेशन को देख रहे हैं व्हाट्सएप को, ठीक है, या कोई भी सोशल मीडिया की एप्लीकेशन, लेट्स से सम चैट एप्लीकेशन, सम सोशलाइजिंग एप्लीकेशन, हम इसको सिर्फ एज अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हम सिर्फ ये देखेंगे कि हम उसको प्रोग्राम कैसे करेंगे, हम उसको मोबाइल ऐप पे डेवलप कैसे करेंगे. लेकिन एज अ बीएस इन इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, एज अ स्टूडेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, उस स्टूडेंट के हिसाब से हम ये देखेंगे कि एक्चुअली इसके सोशल इम्प्लीकेशंस क्या हैं, इसके एथिकल इम्प्लीकेशंस क्या हैं, इस एप्लीकेशन को होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस एप्लीकेशन को पब्लिक होना चाहिए या प्राइवेट होना चाहिए. तो आप उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, मैनेज करेंगे, उसको इवैल्यूएट करेंगे फ्रॉम यूजर पर्सपेक्टिव. तो इसलिए इंफॉर्मेशन सिस्टम्स जो है यहाँ पे आपको हेल्प आउट करता है. इसी तरह अगर कोई एप्लीकेशन आप डिजाइन कर रहे हो, लेट्स से फॉर ब्लाइंड, सम एप्लीकेशन फॉर डेफ एंड डम, तो आप सर्वे करेंगे उन लोगों का जिनको इस चीज की जरूरत है. तो आपकी जो टारगेट मार्केट होगी वो ऑडियंस होगी जो सिस्टम को इस्तेमाल करेगी. एंड दैट टारगेट ऑडियंस, टारगेट मार्केट विल गिव यू एन आइडिया कि एक्चुअली ये कितनी बेनिफिशियल है, इसको होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इसके और क्या फीचर्स होने चाहिए. सो दिस इज अगेन अ वेरी डाइवर्स फील्ड. सो इफ यू हैव अ बैकग्राउंड इन कंप्यूटर साइंस and you are good at communicating with people, then BS information system is a choice that you can make. The courses that are being taught are diverse courses. For example, data analytics, business data analytics. You have a business and you analyze the data so that you can manage the business well. Let's say you have a home run business, ठीक है, कोई family business है and that is being run in one way, and now a year that take over कोई और उसको दूसरे तरीके से चलाना चाहता है, तो पास्ट जो डेटा होगा उस बिजनेस को, that would be beneficial for future prediction. इसी तरह there would be a course that would give you an information of the IT technology like Excel की application, PowerPoint की application, ताकि आप उसको इस्तेमाल कर सकें. बिजनेस प्रोसेस मॉडलिंग के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन दी जाएगी. अच्छा, फिर साथ में इसमें जो चीज अहम है वो ये कि whether this information is secure or not. Let's say if there's some payment that is being involved through an e-commerce website, तो उस पेमेंट को किस चैनल्स के थ्रू राउट करना है, जो इंफॉर्मेशन डिसमिनेट की जा रही है या फैलाई जा रही है, क्या वो इंफॉर्मेशन सिक्योर है या नहीं है. इस इंफॉर्मेशन के जो, यानी कि लेट्स से इसमें आप क्योंकि आप सोशल एस्पेक्ट्स भी कवर कर रहे हैं, तो आपकी जो कस्टमर का डेटा है दैट इज कॉन्फिडेंशियल, आपके जो बिजनेस का डेटा है दैट इज कॉन्फिडेंशियल. सो उस इंफॉर्मेशन की, उस डेटा की सिक्योरिटी को मेंटेन करना इज ए इशू.
So you should not give a third party or a third vendor some access to information. Security की जितने issues हैं वो भी यहाँ पे cover होते हैं. इसी में मैं बताना चाहूंगी कि हैकिंग, स्टूडेंट्स अक्सर पूछते हैं कि मिस क्या आप हमें सिखाएंगी कि हम हैकिंग किस तरह कर सकें, डार्क वेब को कैसे डिस्कवर कर सकें. तो ऑब्वियसली हैकिंग के दो एस्पेक्ट्स हैं. देयर इज एन एथिकल हैकिंग, यानी कि एथिकल हैकिंग आपके पास एथिकल हैकर्स भी होते हैं, इसी तरह आपके पास कुछ ऐसे हैकर्स होते हैं जो अनएथिकल वेज से. जो अनएथिकल हैकर्स होते हैं वो एक्चुअली आपकी इंफॉर्मेशन को मिसयूज करने के लिए, लेट्स से योर क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन, योर डेबिट इंफॉर्मेशन, योर कोई भी की या पिन या पासवर्ड, उसको हैक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. जो एथिकल हैकर्स होते हैं ऑन द अदर हैंड, वो एक्चुअली वो सारे वेज को सॉर्ट आउट करते हैं टू प्रिवेंट यू फ्रॉम दोज अटैक्स दैट आर बीइंग मेड बाय दोज ब्लैक हैट हैकर्स. तो साइबर सिक्योरिटी में हम ये कहेंगे कि हमारे पास साइबर सिक्योरिटी में वो कोर्स आएगा जिसमें आपको रेड हैट हैकिंग के बारे में भी बताया जाएगा, व्हाइट हैट हैकिंग के बारे में बताया जाएगा, ब्लैक हैट हैकिंग के बारे में बताया जाएगा. और वो सारी चीजें सिखाई जाएंगी जिस तरीके से आप अपने इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को सिक्योर बना सकते हैं. So data, network security, all these are the topics that are being taught in this field. So if we look at the scope of the job market, तो किस तरह की मार्केट है, इसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज्यादा स्कोप है. इस वक्त सबसे हाईली पेड जॉब्स जो है वो डेटा एनालिस्ट हैं. डेटा एनालिस्ट हैव अ कॉम्पिटिटिव एज बिकॉज वो लोग हैं जो आपके ग्राफ्स को देखकर और डेटा को देखकर दे मेक एन एनालिसिस, दे गिव यू अ प्रेडिक्शन whether we have to do this thing or we do not have to do this thing. So data is there, but data अगर हमारे पास raw format में तो हमें कोई फायदा नहीं दे रहा जब तक कि वो हमारे लिए इंफॉर्मेशन ना बने. तो एनालिस्ट जो है वो उसको एनालाइज करेगा और उस डेटा को हमारे लिए इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करेगा सो दैट वी कैन डू गुड डिसीजन मेकिंग. इसी तरह नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर्स, नेटवर्क सिक्योरिटी मैनेजर्स, दे आर ऑल्सो वेरी लुक्रेटिव जॉब्स दैट आर इन दिस फील्ड. साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट की हमने बात की. साइबर सिक्योरिटी आज आपने एक टर्म सुनी होगी, दैट इज बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, इस तरह की बहुत सारी टर्म्स यूज हो रही है. सो साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट जो है वो इन सारे तरीकों को स्टडी करते हैं जस्ट टू कम अप विथ कि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. अब गवर्नमेंट ने भी लास्ट ईयर प्रेसिडेंशियल इनिशिएटिव लिया था जिसमें उन्होंने एआई के कोर्सेज कराए थे, ब्लॉकचेन के कोर्सेज कराए थे. तो ब्लॉकचेन बेसिकली वो टेक्नोलॉजी है जो साइबर सिक्योरिटी में इस्तेमाल होती है. तो उस टेक्नोलॉजी के थ्रू आप अपनी ट्रांजैक्शंस को किस तरह से सिक्योर कर सकते हैं, एंड टू एंड सिक्योर कैसे कर सकते हैं, दैट टेक्नोलॉजी इज ब्लॉकचेन. सो आजकल क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइंस की जो टर्म यूज हो रही है दैट इज साइबर करेंसी. वो करेंसी जो एक्चुअली वर्चुअल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है लेकिन एक्चुअली आपके पास वो मनी नहीं है. That is a virtual world money that is being used for performing trade. तो उसके एस्पेक्ट से साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट वर्क ऑन दोज. इसी तरह हमने बात की रेड हैट हैकर्स की, व्हाइट हैट हैकर्स की. तो रेड हैट हैकर्स भी एथिकल हैकर्स हैं, व्हाइट हैट हैकर्स भी एथिकल हैकर्स हैं. जो रेड हैट हैकर्स हैं उनका काम है ब्लैक हैट हैकर्स को ढूंढ निकालना, मतलब वो सारे अटैक्स कैरी आउट करते हैं, सारे वो काम करते हैं ताकि हम ब्लैक हैट्स को ट्रैप कर सकें. और व्हाइट हैट हैकर्स क्या करते हैं, आपका जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है लेट्स से एक कंपनी का, उसको एनालाइज करते हैं, उसको ऑडिट परफॉर्म करते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि इसमें कौन कौन सी लूप होल्स हैं. फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट ये बताता है कि मेरे पास कीज सिक्योर है या नहीं, मेरे सिस्टम में एंट्री सिक्योर है या नहीं, किसी तरीके से मेरा सिस्टम जो है वो हैक हो सकता है या नहीं. तो ये सारे काम जो है वो हमारे पास व्हाइट हैट हैकर्स परफॉर्म करते हैं. सो दीज आर बेसिकली द गुड गाइज दैट आर देयर टू सपोर्ट अस. सो दीज आर सम ऑफ द जॉब्स that are available in this domain. So this was just an idea. In the next session, inshallah, we will discuss upon computer engineering and software engineering and what is the scope of those fields and what are the job markets, what are the potential careers that are available in those fields as well. Thank you so much. Jazakallah Asma for enlightening us with another informative and valuable session. So now we are left with a couple of sub-branches of computer science, which inshallah we'll go through in our next sessions. And as always, if you have any questions, please drop them in the comment section. And inshallah, we'll reply them as soon as possible. Thank you for your time.
We hope that these sessions are very valuable for you, and we'll see you in the next session. Assalamu alaikum rahmatullah.